our Principal to this session of Mock Parliament 2024-25. I request everyone to stand at your place. Now thank you, sit down. Sit down, it was for the parliamentarians. Please sit down. Please sit down. Democratic country. But have you ever wondered that where is the temple of this democracy? Namaskar and a very pleasant good morning to our honorable principal sir and respected teachers and my dear companions. Myself Nishant Kumar with my anchoring partner Shreya. The temple is this democracy none other than the parliament. The parliament plays an important role in shaping our nation as it formulates, implements and amends law. Today we have gathered here to understand this in better way through mock parliament. So without any delay, let's begin this exciting session. Speaker. constituency. Honorable speaker is coming, so please all the members stand up. Sit down. In which language do you want to take oath or affirmation? English. Okay. I, Ayush, having been elected from Patna Sahib to do the swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I will uphold the sovereignty and integrity of the India and I will faithfully discharge the duty that I am about to enter. Jai Hind, Jai Bharat. To call Atulya from Buxar constituency. In which language do you want to take oath or affirmation? English. Okay. I, Atulya, having been elected as a member of parliament from Buxar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. As by law established, I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty that I am about to enter. Jai Hind, Jai Bharat. Now I would like to call Ayush from Jahanabad constituency. Yes, Indian. In which language do you want to take oath or affirmation? In Sanskrit, please. Okay. आयुष सिंहाय राज्यसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना सपे यद अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि यत् पद अहं ग्रहीतुं from Varanasi constituency. In
In which language do you want to take oath or affirmation? In Hindi, please. Okay. मैं ऋषि वीर जो युवा सांसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत। Now I would like to call Anupriya from Chandni Chowk constituency. In which language do you want to take oath or affirmation? In Hindi, please. Okay. यहाँ उपस्थित आप सभी को सुप्रभात। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुप्रिया भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित होने के बाद यह शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करूंगी तथा अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगी। संघ की प्रधानमंत्री के रूप में मैं संविधान के अनुसार लोगों की सभी कार्यों में सहायता करूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Which language do you want to take oath or affirmation? In English. Okay. I, Govind Kashyap, having been elected a member of the parliament, do swear in the name of God that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Bharat. Now I would like to call Aditi from North Mumbai constituency. In which language do you want to take oath or affirmation? English, please. Okay. Aditi, having been nominated as a candidate from North Mumbai to fill a seat in the Council of State, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. In which language do you want to take oath or affirmation? In English. Okay. I, Anindra Sinha, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Bharat. I, Nivedita Singh, having been nominated as a candidate of New Delhi to fill a seat in the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Some questions from the audience and those who will give the correct answer will be rewarded. So, first question, what is the Indian Parliament made of? What is the Indian Parliament made of? How is the Indian Parliament made of? Consists of, I don't know what, how the parliament consists of. Member of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. Correct answer. Lower House of the Parliament. What is the name of the lower house of Parliament? The answer is Lok Sabha. Correct answer. It was a very simple question.
Lower house, Sunita ma'am. इधर भी lower house and lower chamber and house of the people. Yes. Everyone knowing the answer. Very simple question you are asking. Okay. How many members are there in Lok Sabha? And how many members can be exceed in Lok Sabha? 546. No. Can be exceed in Lok Sabha? Yes? No. 42 wrong answer. 52. This is the right answer. Who is the Speaker of Lok Sabha? Om Birla. Who is the Speaker of Lok Sabha? President. Lok Sabha and Om Birla. As we know that Parliament is the highest law-making body. Clear? And through the amendment process, we amend something. So, अभी बहुत ज़्यादा hot discussion चल रहा है एक topic पर 129 amendments. Who knows? One nation, one election. Right. No. You said one man, one election. Who was the first Speaker of Lok Sabha? Audience. Who was the first Speaker of Lok Sabha? G.V. Mavalankar was the first speaker. Yes, G.V. Mavalankar was the first Speaker of Lok Sabha. What is the budget also known as? Parliament system based on the session. As we meet today, it is my sad duty to inform the House the demise of our colleague Sri S.M. Krishna. Sri S.M. Krishna, known for his efforts to promote brand Bengaluru, he died at the age of 92 on 10th December 2024. All the members, please stand up for 2 minutes for remembering our minister Sri S.M. Krishna. Raise a phone. Time over. Everyone sit down. Now let's begin with the question 1. Honorable Speaker, I would like to ask question to Minister of Agriculture. मैं इस शिक्षा की गंभीरता को कुछ पंक्तियों द्वारा समझाना चाहूँगा। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीरें बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, साहब दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। किसान एक ऐसा शब्द है जब हमारे जहन में खोलता है तो एक गरीब पिछड़े हुए कमजोर से आदमी की छवि बनती है। पहले किसान ऐसा नहीं था। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान के विरुद्ध प्रदर्शनों की शुरुआत 2020 में हुई, लेकिन 2024 के प्रदर्शनों में उनकी कुछ मांगे थी जिनको वो फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 कह रहे हैं। उनकी मांगे क्या थी पता है आपको? उनकी मांगे थी फसल की उचित कीमत न मिलना, बढ़ती लागतें,
कम लागत वाले आयात और यूरोपियन यूनियन द्वारा जारी किया गया पर्यावरण। महोदय, भारत में औसत पोषण आहार न केवल विकसित देशों बल्कि चीन और वियतनाम की तुलना में भी बहुत कम है। तो महोदय, मुझे तो किसानों की मांगे पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं। श्रीमती, मेरा सरकार से यह सवाल है कि सत्तारूढ़ दल प्रदर्शनकारी किसानों की जरूरतों को पूरी करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय कर रहा है सरकार? इतना विरोध देखने के बाद भी सरकार के कानों में जुए क्यों नहीं रेंग रही है? अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, लहू में हरकत मुंह में जुबान डालेंगे, लहू में हरकत मुंह में जुबान डालेंगे, जो सच्चे हैं मुर्दों में जान डालेंगे, इनके बच्चों की हिफाजत जरूरी है साहब, रोटियां पेट में यही किसान डालेंगे। मुझे तो लगता है कि हमारे नेता को कवि बनना चाहिए था, गलती से ये नेता बन गए हैं। पंक्ति तो बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं आप, लेकिन अब उत्तर तो हमें ही देना पड़ेगा। तो विपक्षी जरा गौर से सुनिए। गलतफहमी के सिलसिले में एक ईंट को भी लगता है कि पूरी दीवार उसी पर टिकी हुई है। आपने ऐसा अटपटा सवाल कैसे ही पूछ लिया? मैं जब आपने प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं इसका सीधा सीधा जवाब दे ही देता हूँ। In the interest of budget of 2024, the Department of Agriculture and Farmer Welfare has paid rupees 1,40,000 crore on our farmers. We paid 26 lakh and 20,000 crore on soil and fertilizer for helping farmers. This is more than the 10% budget of our 10% of our total budget. जब आपकी सरकार थी तब उस समय इतने किसानों की आत्महत्या हुई और आप हमसे तो पूछते हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए सबसे बड़ी समस्या है कालाबाजारी। विपक्षी से मैं यह पूछना चाहूंगा, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर क्या सोचा था? Honorable Speaker, I would like to answer the question raised by Minister of Agriculture. सरकार ने कृषि क्षेत्र में कालाबाजारी को कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर विचार किया था। उदाहरण स्वरूप कई राज्य सरकारें और केंद्रीय मंत्रालय कृषि उत्पादों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नियंत्रित करने की दिशा में काम कर रहे थे और करते रहेंगे। नाम तो सुना ही होगा। जैसे पहले इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ किसान अपने उत्पादों को राष्ट्रीय डिजिटल मंडियों में बेच सकते हैं, जिससे मध्यस्थों की भूमिका घटती है और उनके उत्पादों को उनके बेहतर मूल्य मिलता है। लेकिन सरकार जहाँ आप जैसे लोग हैं वह कालाबाजारी और कम नहीं और बढ़ जाती है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या कालाबाजारी नहीं, आप है सरकार, आप। आदरणीय सभापति महोदय को मेरा नमस्कार और यहाँ पे सारी सदस्य को भी मेरा नमस्कार। आज मैं गृह मंत्री से चंद सवाल पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है, दिल्ली की हवा में आदमियों का दम घुटता है, दिल्ली की हालत ऐसी पानी के लिए गला सूखता है। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि दिल्ली में इतना प्रदूषण है, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय महोदय, हमारी विपक्षी पार्टी ने जो हमसे सवाल पूछा है कि हम लोग एयर पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने के लिए सरकार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन लगा रही है और तो और इमिशन नॉर्म्स का इम्पोर्टेंट बढ़ा रही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट कर रही है। कि जब तक दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा नहीं तब तक ये कोई काम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन होने के पहले भी हम लोग ने बहुत कदम उठाए और वो बहुत कारगर भी है। जैसे कि हमने वाटर फॉगिंग सिस्टम लगाया, जगह जगह पौधे लगाए। आप लोग तो कुछ करते नहीं, आपके सरकारी साल से बैठे हुए हैं। हमारे सरकार के समय रिसोर्स की कमी थी तो इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने कोशिश अपनी पूरी की थी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं संभल में हिंसा हुई, कई लोगों की जान गई, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वाह वाह, क्या बहाना बनाया है, कुछ तो बात कहना है आप लोग को, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। और संभल के लिए आप लोग जो पूछे, भाई साहब संभल घटना की ओट में, भाई साहब संभल घटना की ओट में आप अपनी रोटी सेकने का काम मत कीजिए।
आप लोग तो आग में और घी डाल रहे हैं कि आग जलते रहे और आप लोग मजा लेते रहे। होम मिनिस्टर का महत्व और गरिमा को मैं समझता हूँ और इस सार्थक कदम उठाने के प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग राक्षस नहीं भाक्षक बन के काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। देश को और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। सफेद कपड़े में काला चेहरा रखने वालों को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। आदरणीय सभापति महोदय, मैंने तो इनसे बस एक सवाल पूछा था। एक सवाल के कारण ये इतना तिलमिला गया जैसे किसी मछली को जल से निकाल के फेंक दिया गया हो। अरे जब से हमारी सरकार बनी है तब से तो आप ही की गंदगी साफ कर रहे हैं और तो आप लोग कुछ किए नहीं। सभापति महोदय, ये एक सवाल के कारण इतना गुस्सा हो गए। मेरे को तो इनके जवाब से ये सिद्ध होता है कि सत्य कटु अर्थात कड़वा होता है। इनके जवाब से तो मुझे ये लग रहा है कि इनको भी अंदर ना अंदर कहीं लगता है कि संभल में इनकी सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। अंत में मैं इनसे बस यही कहना चाहूंगा कि संभल की घटना पे थोड़ा और ध्यान दें और थोड़ा सा विचार विमर्श करें। और आदरणीय गृह मंत्री जी, आपका पद मेरे से बड़ा है, तो यदि मेरे शब्दों से आपकी भावना को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वैसे भी अपने बड़ों से क्षमा मांगने में दिक्कत क्या है। क्वेश्चन 3। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज सिन्हा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल करना चाहूंगा। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी बदहाल है और तो और स्वास्थ्य कर्मी अत्यधिक कार्य के दबाव में काम कर रहे हैं। केवल योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा। क्या मैं पूछ सकता हूं आप क्या कर रहे हैं? मैडम स्पीकर, इन अपोजिशन को सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बोलने में मजा आता है। मुझे तो लगता है इन्हें यह भी नहीं पता है कि भारत की निचली स्तर में क्या हो रहा है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि सरकार ने कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली को संभाला है तथा हमने चुनौतियों के बावजूद 20% स्वास्थ्य बजट का बढ़ाया है तथा 15,000 नए स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ा है। मोबाइल क्लिनिक की सुविधा पिछड़े इलाकों में प्रदान की है। आपको ये पता होना चाहिए कि परिवर्तन में समय लगता है। जब सच आपसे कहा गया था तो आपको लगा कि बस कुछ हवा में था। सच की आवाज थी इतनी तेज और कड़वी, पर आपको समझ में आई नहीं क्योंकि सच आपका दर्द था। महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि लोगों का इलाज सही से क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी आपने उत्तर दिया है उससे लोगों का इलाज तो नहीं होगा। लोग मर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है। जिला अस्पताल टूटे हुए उपकरणों के सहारे चल रहे हैं। सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर जोर क्यों नहीं दिया? झूठे आरोप। मैडम स्पीकर, नजर को बदला जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं। नजर को बदला जाए तो नजारे भी बदल जाते हैं। अगर सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। बीमारी से बचाव हमारी प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसी पे केंद्रित है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा एनीमिया जैसी बीमारियों के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अभियान सफल परिणाम दे रहे हैं। तथा मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदल दें तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यह जो शायरी आपने मारी है उससे अच्छा आप इसका पॉइंट पे उत्तर देते तो बेहतर होता, क्योंकि अगर परिणाम इतने ही सकारात्मक होते तो भारत का मातृ एवं शिशु मृत्यु दर विश्व में इतना अधिक क्यों है? देखिए, आपका ध्यान केवल शहरी क्षेत्र तक ही प्रशिक्षित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अभी भी उपेक्षित हैं। आपके प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, लेकिन सरकार केवल योजनाएं बनाती है जिनका जमीनी हकीकत बहुत ही निराशाजनक है। नीतियां तभी प्रभावी होंगी जब वे अमल में लाई जाएं। लोगों को सुलभ, सस्ता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य चाहिए, ना कि केवल वादे।
मैडम स्पीकर, सरकार एक स्वस्थ भारत के लिए प्रतिबद्ध है। आलोचनाओं का स्वागत है, पर लेकिन प्रगति को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। हम जानते हैं, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष हमारे साथ सहयोग करेंगे तथा वो हमारे साथ मिलके बीमारियों को खत्म करने के नए योजनाओं का सुझाव देंगे हमें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। धन्यवाद। क्वेश्चन 4। माननीय वक्ता तथा मेरे साथी सांसद, मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे भारत के सभी नागरिकों को, मेरे शब्दों में गौर फरमाइएगा, सभी नागरिकों को यदि समानताएं प्रदान की गई है तो कृपया मुझे बताइए कि अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटीज के प्रति हिंसा की घटना आगे घटी तो घटी क्यों? माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष दल के नेता से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या ये सिर्फ मुद्दे ही उठाएंगे या कुछ समाधान भी बताएंगे? ये महाशय 2002 में हुई गोधरा कांड तथा मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन को लेकर कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हुई है, पर क्या इनके आंखों में पट्टी बंधी है जो इन्हें दिखाई नहीं देती सरकार द्वारा चलाई गई तमाम एक्ट, जैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभिउदय योजना, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट इत्यादि। माननीय वक्ता तथा मेरे साथी सांसद, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत के सभी नागरिकों को समानताएं प्रदान की गई, मैं सदन का ध्यान एक घटित शर्मनाक घटना की ओर दिलाना चाहता हूँ। ट्रांसजेंडर निवासियों में की गई पुलिस के द्वारा क्रूरता, उन्हें शारीरिक व मौखिक रूप से हिंसा से करना पड़ा सामना। सरकार अगर कहती है कि भारत के सभी लोग समान है, आखिर कौन सी समानता है? आखिर किस समानताओं के बात कर रहे हैं आप? महोदय, जैसा कि मेरे विपक्ष दल के नेता ने कहा, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले तो इनके लिए ताली बजवाना चाहिए, ये चिल्लाते बहुत अच्छा है। ये जो शर्मनाक घटना हुई है, ये केवल एक 21 वर्षीय ट्रांसजेंडर का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उन पुरुषों के बारे में भी है जो इंसान की तरह व्यवहार करना छोड़ जानवर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इस घटना पर एक बात तो कहनी पड़ेगी हुजूर, मानना पड़ेगा, पुराने मुर्दे उखाड़ने में तो आपका जवाब नहीं है। इस घटना को तो घटे 14 साल बीत चुके हैं, क्योंकि ये 2010 की बात है, पर तो आपको तो बस आलोचना करने से तो फुर्सत ही नहीं है, जो आपको तमाम चीज दिखाई नहीं देती। जैसे तमिलनाडु स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ये ट्रांसजेंडर के बारे में लोगों को अवेयर करवाते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या मुझे बता सकते हैं कि कब तक आप इस बात को दोहराएंगे? हर बार जब भी किसी अल्पसंख्यक को परेशान किया जाता है तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि वह होने वाली शर्मनाक घटनाओं को कम करने के लिए कड़े से कड़े कानून निर्माण करेगी। माननीय, आखिर कौन से कानून आज से आपके लाभकारी हुए? अरे ऐसे कानून तो आए दिन ही बनते रहते हैं, परंतु ऐसे कानून को लागू करवाने में शून्य, जी हाँ, संभावना शून्य होती है। मैं माननीय से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वो बता सकते कि इस बार सरकार सक्रिय होगी तथा मामलों के मुद्दे पर विचार रखेगी? मैं अपने विपक्ष दल के नेता की बात से सहमत हूँ। हाँ, सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाती। पता है क्यों? आप जैसे लोगों के कारण, जो सरकार का सहयोग में उनकी आलोचना करती है। पता है, आलोचना सोशल मीडिया पर किसी शर्मनाक घटना को देखकर उस पर दुख जताने वाले तो हजार हैं, पर कोई सरकार की स्कीम का सहयोग करने वाला नहीं। दौड़े सिस्टम के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करवाता, बल्कि पुलिस के घर ही दहेज पहुंचाई जाती है। जो नेता चुनाव के वक्त हाथ जोड़कर, माँ बहन बोलकर एक एक वोट की भीख मांगने सबके घर जाता है, वही नेता जीतने के बाद पता है क्या करता है? उन्हीं माँ बहनों के साथ दरिंदगी पर उतर जाता है। जनाब, जरूरत ये नहीं कि कीचड़ उछाला जाए, जरूरत है तो साथ मिलकर कीचड़ को साफ करने की है, समझे आप? आज मैं बस इतना कहना चाहूंगी, सबका साथ सबका विकास। जय हिंद।
सभी जानते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सेना में भर्ती किया जा रहा है, जिस पर काफी ज्यादा विवाद है। और हो भी क्यों ना, जब कोई एक जवान सेना में अपने 4 साल समर्पित कर देता है तथा अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार को आर्थिक रूप स्वतंत्र बना देता है, उसके बाद यह सरकार उस पर देशभक्ति का या उससे साहस उससे छीन लेती है तथा उसे बेरोजगारी का धब्बा लगा देती है, जिस वजह से उसका मानसिक तनाव तो बढ़ता ही है तथा वो जीवन में कुछ भी सफल करने से चूक जाते हैं। मुझे तो रोजगार और युवाओं का एक घटिया खेल देखकर सरकार की नीतियों से घिन आने लगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अग्निपथ जैसी योजनाएं क्या आप युवाओं में मानसिक तनाव बनाने के लिए लाते हैं? आदरणीय अध्यक्षता महोदय, मैं हमारे विपक्ष मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि सिर्फ विदेश में जाकर भारत की बुराई करने से उन्हें हमारे देश के हितों एवं योजनाओं के बारे में कैसे पता चलेगा। और रही बात अग्निपथ योजना की, तो इसके तहत जवानों को 4 साल की सेवा का मौका मिलता है, जिसमें उन्हें हर महीने अच्छा वेतन पैकेज और 4 साल की सेवा के बाद उन्हें 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान मिलता है। इसके साथ ही उन्हें अग्निवीर प्रमाण पत्र कार्ड भी मिलता है, जिससे उन्हें रोजगार खोजने में सरलता एवं सहायता प्रदान होती है। माननीय अध्यक्षता जी, हमारे प्रिय रक्षा मंत्री जी रोजगार और पैसों का मूल भाव कर रहे हैं। मेरा इनसे यह सवाल है, क्या रोजगार का पैसों से कोई मूल है? माननीय अध्यक्षता जी, मैं विपक्ष के नेता से कहना चाहूंगा कि आज जो इतने चिल्ला के बातें कर रहे हैं, अपने काल में इन्होंने क्या किया। हमने कितने अच्छे योजनाएं लाई हैं, जैसे अग्निपथ योजना, और इसके तहत बहुत ही फायदा भी हो रहा है। क्या इन फालतू की आरोपों को लगाने के बजाय ये कुछ सही मुद्दे उठा सकते हैं? माननीय अध्यक्षता जी, हमारे प्रिय सरकार और उनके प्रिय नेताजी की लापरवाही का एक और ही नमूना देख लीजिए। भारत के बढ़ते एलएसी पे चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार की वजह से भारत से सटे सभी राज्य दहशत में हैं। वह इस दहशत में है कि कहीं उनकी माँ बेटियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। चीनी सैनिकों के घर में घुसकर कोई अफरा तफरी ना मचा दे, पर हर बार की तरह इन्होंने कोई कार्य नहीं किया और ना ही अपनी छुट्टी तोड़ी है। हर बार की तरह देश की जनता को मिले हैं तो सिर्फ धोखे और झूठी दलील है। अरे संसद की कुर्सी को छोड़ कभी देश के लिए काम कर लिया करो। The court is adjourned for now. सभी को पता है, our parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. And the parliament is a temple where we discuss all the issues related to day-to-day problems, and where they make a law for the citizen of our country. Clear? So what are the age criteria to become a member of the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha? Lok Sabha, Rajya Sabha. Wrong answer. Wrong answer. Wrong. Now the next question. Who was the first Vice President of India? Who was the first Vice President of India? Dr. Sarvapalli Radha Krishnan. Yes, this is the right answer. Clap. ये जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, ये कौन सा ईयर है, कौन सा सेशन है और कौन सा लोकसभा चल रहा है सेशन का?
लोकसभा का ये कौन सा ईयर का सेशन चल रहा है? 71, 72, 80, 90, 1, 2 क्या? हाँ, अभी पूरे न्यूज़पेपर में यही पब्लिश हो रहा है। हाँ, 72, नो, 78, ज्यादा ऑडियंस आंसर किया, मेरे पास पेन की कमी है। ओके, दिस इज द राइट आंसर, 78। Proceed with question 6. अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल विदेश मंत्री से है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का क्या रुख है पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने को लेकर, खासकर आतंकवाद के मसले पर? पाकिस्तान द्वारा जो आतंक किए जा रहे हैं, क्या उसे रोकने में आप सक्षम हैं? क्या उनके साथ शांति का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं आप लोग? धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों का पसंदीदा है, परंतु पाकिस्तान का आतंकवाद का समर्थन हमें कतई स्वीकार नहीं है। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान तथा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मुद्दे उठाए। ये तो रहा मेरा जवाब। अब मेरा सवाल सुनिए। आपकी जब सरकार थी तो आपने आतंकवाद और नक्सल का खुल के समर्थन किया। उसके पता है क्या हुआ? मेरे भतीजे की शादी रुक गई। उसके बाद अब उसकी बैठा हुआ है। आपकी सरकार तो केवल चाय की चुस्कियां लेते लेते आज तक बनते आई है। अरे हमारी सरकार ने तो चाय की चुस्की लेते लेते 3 बार सत्ता में लगातार आ गई। आप लोग ने क्या किया? माननीय मंत्री, मेरा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत ने अमेरिका के साथ, और न केवल अमेरिका के साथ, और भी ऐसे कई देशों के साथ है जिनके साथ संबंध बनाए। ऐसा मुमकिन है कि वह देश हमसे हमारी कमजोरी जान के वो हमें हमारे नुकसान पहुंचा सके। तो आप लोग को अगर उन्हीं देशों के साथ संबंध बनाना है तो कृपया कर उन्हीं देशों के साथ आंतरिक संबंध में रहिए और सरकार में रहिए। आपकी सरकार की पदवी से इस्तीफा दे दीजिए। अरे बस आप बात बनाना जानते हैं, कुछ काम तो करना जानते नहीं। मेरा जवाब सुनिए। सत्ता पक्ष अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बना रहा है। ये हमारी विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे देश को बहुत सहायक होगा। समझ रहे हैं आप? आपकी सरकार तो केवल अडानी वैसे आज तक चलते आई है। अरे आप अडानी की बात करते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम सुना है? जो सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उसका पैसा देके धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल माननीय पर्यावरण मंत्री से। भारत में प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भतीजे की शादी रुक गई तो मेरा भतीजा पॉल्यूशन की वजह से मर गया। क्या सरकार पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करेगी? धन्यवाद माननीय सदस्य। प्रदूषण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें स्वच्छ वायु मिशन, नदियों की सफाई और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने जैसे प्रोत्साहन शामिल है। पर आपको ये सब कहाँ नजर आता है? आपको सिर्फ उंगलियां उठाना आता है। आप भी तो सत्ते में थे, पर आपके सत्ते में किया गया काम सिर्फ किताबों में दिखता है, असलियत में नहीं। मंत्री महोदय, हमारी नदियां और जल स्रोत बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही है। क्या सरकार नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए कोई ठोस उपाय करेगी? पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। जब आप लोग सत्ता में रहे तब आपको इस नदियां की सफाई कब याद नहीं आई थी? लेकिन जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग नमामि गंगे जैसे महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत गंगा नदी समेत अन्य प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की गई है। मंत्री महोदय, मेरा तीसरा सवाल, भारत में प्लास्टिक प्रदूषण एक बढ़ता हुआ संकट बन चुका है। क्या सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसके स्थान पर पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री को बढ़ावा देने की नीति बनाई है। क्या आपने ऐसा किया था? नहीं। अब ये सब आपका द्वारा किए गए कचरा को हम लोग साफ कर रहे हैं। हम लोग लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और
स्वच्छता अभियान के तहत इसे रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Question 9. My first question from External Minister is, as you said during your Bahrain visit speech, that India had made a significant progress in recent years in trade and investments. May I ask, how did you come to this conclusion? Well, I also mentioned in my speech that we did not fully achieve that. I just see the potential in many new areas like space, education, fintech, SMT. This was all my speculations, as you may consider. Is that so? If you think that India has a principal position in the world, then you all must be well acquainted with Israel-Gaza war. As the External Minister of India, what are your concerns for that? Is that so? If you think that India has a principal position in the world, then you all must be well acquainted. Well, resolution and trust in India and my talks. Well, it seems like you lack it. I remember to have mentioned in my speech that we believe in adhere to international humanitarian law. The resolutions for both the trust in India and talks are absolute. What you think very much inspired international humanitarian law do against NST accuses Israel of genocide against Palestinians in Gaza. I took a hard way there. India's interests do not match the UN's resolution, including terrorism. I abstain on the behalf of India from voting on some resolution against Gaza on the UN's General Assembly. Don't you think that you should have demanded that Israel brings to an end to its unlawful presence in the occupied Palestinian territory without delay and within the next 12 months? Yes, I do think that and I appreciate your consent. I will surely submit it to the Parliament with my bill. Question 10. पर्यटन मंत्री से है कि हमारे देश में जितने भी फंड्स आते हैं टूरिज्म के लिए वो कहाँ जाते हैं और डेवलपमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा टूरिज्म में। मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। प्रचार कार्यक्रमों, सांस्कृतिक उत्सवों और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे देश के लिए। Honorable Madam Speaker, unemployment among the youth is all-time high. Promises of creating jobs remain unfulfilled. Instead of addressing skill gaps and providing sustainable development among the education sector, the government indulges in optics. I would like to ask from the Honorable Minister of Youth Affairs that Indian youth are so much indulging to find jobs instead of these tall promises in the current scenario. Madam Speaker, I appreciate the opposition minister's concern regarding the issue of youth employment in our country. But I think he paints a one-sided picture of the scenario. मैं माननीय विपक्ष मंत्री को सरकार के द्वारा उठाए गए उन विभिन्न कदमों की याद दिलाना चाहूँगा जिसके द्वारा सरकार ने हमारे देश से युवा बेरोजगारी की समस्या को मिटाने का सदैव प्रयत्न किया है। For example, the government has launched various programs like Skill India, Atmanirbhar Bharat and many more to address the issue. All these programs aim to empower youth with the skills required for creating a dynamic economy. इसीलिए मैं माननीय विपक्ष मंत्री से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की तरफ उंगली उठाने के बजाय वह सरकार के उन कदमों की सराहना करे जिसके द्वारा सरकार ने हमारे देश के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया है। धन्यवाद। माननीय वक्ता महोदया, मैं महिला तथा बाल विकास मंत्री से यह प्रश्न पूछता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में नारियों को सुरक्षा व अधिकार के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। हमारी बात पुरानी नहीं है जब हमारे भारत में निर्भया कांड, गुवाहाटी कांड तथा कोलकाता केस हुआ था। मैं माननीय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या उन बेटियों को जीने का कोई अधिकार नहीं था? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों को सम्मान किया जाता है वहाँ देवता विराजित होते हैं। मैं माननीय से यह प्रश्न पूछता हूँ कि क्या वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे देश की नारियां सुरक्षित है? माननीय स्पीकर महोदया, मेरे सांसद के सदस्यों, मैं अपने विपक्षी नेता से पूछना चाहूंगी, आखिर उन्हें खबरें कहाँ से मिल रही है? ऐसा कौन सा मूर्ख इंसान है जो उन्हें ये उलझुल की बातें बताया? जनाब, हमारी सरकार नारियों की सुरक्षा तथा समानता देने में कोई कसर नहीं छोड़ती और आप कहते हैं हमने किया ही क्या है।
अब आपकी आंखें बंद है तो हम क्या ही कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। हमने ऐसे कड़े कानून बनाए हैं जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है, और अगर कोई इन कानूनों के विपरीत जाने का सोचता है तो इसके लिए भी उसे कड़ी सजा दी जाती है। बड़े बड़े बंगलों में चाय की चुस्कियां लेने से कुछ नहीं होगा। अब कभी बाहर आकर देखिए कि भारत पहले से कितना बदल चुका है। अब यहाँ हर महिला को उतना ही हक है जितना एक पुरुष को है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारी महिला एवं बाल मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। चलिए कुछ डाटा को देखते हैं जो इस प्रमाण देगा कि इनकी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया है। जब से इनकी सरकार बनी है तब से किडनैपिंग के केसेस 8,000 से ज्यादा, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 19,000 से ज्यादा दर्ज हुए हैं। इनकी सरकार ने किया तो बहुत कुछ है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, क्रिमिनल्स के लिए। आप बताइए आपकी सरकार ने क्या कुछ किया महिलाओं की सुरक्षा के लिए? लगता है मेरे विपक्ष के नेताओं की आंखें खराब हो गई है। आंखों का इलाज कराइए जनाब, तब आपको सुधार दिखेगा। हाँ, तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपने आधा अधूरा ज्ञान इकट्ठा किया है। आपने सिर्फ अनसॉल्व डेटा कलेक्ट किया है। कितने केसेस हैं जो सॉल्व हो चुके हैं और कितनों पर कार्रवाई चल रही है। आपने अनसॉल्व केसेस की गिनती बता दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सॉल्व केसेस पर ध्यान दिया? ये तो ऑफिशियल डाटा बताया था मैंने, कितने तो दर्ज भी नहीं होंगे। और हाँ, हमारी आंख तो खराब है। चलिए आपका बात मानता हूँ, आपकी भी आंख खराब है, आपने खुद चश्मा लगा रखा है। यह तो वही बात हो गई, डूबते को तिनका ही सहारा। आपकी सरकार कुछ कर ना पाई तो जो डाटा मिला उसे रट कर आ गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने अपनी देश की बेटियों के लिए कितने स्कीम्स निकाली। बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ, जो कि हमारे देश में काफी सफल रहा। लगता है आप अभी भी उसी भारत को देख रहे हैं जो 9-10 साल पहले ही बदल गए। अब भारत की बेटियां घर की चार दीवारी में नहीं रहती, परंतु वह बाहर की दुनिया में उच्च पद हासिल कर इतिहास के पन्नों में भारत का नाम रोशन करेंगी। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगली बार कृपया पूरी जानकारी लेकर आए तथा कोई भी मुद्दा लाने से पहले नेत्रों की चेकअप एवं चश्मा लगाकर चारों तरफ दृष्टि डालकर जरूर दें। Well, all good things must come to an end, and so does this wonderful event. But before we sign off, we want to take a moment to express our heartfelt gratitude. First and foremost, we would like to thank our principal sir for their constant support and encouragement in making today's program a grand success. And a special thank you for Sunita ma'am and Priya ma'am. They were the backbone of this program. Without their efforts, we were nothing. Thank you so much everybody for giving us such an opportunity to serve us. Thank you. हम लोग सभी लोग इस चीज को सीख रहे हैं कि कैसे इसका प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ता है। सो रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज की क्या रोल होते हैं। पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सिंगल हैंडेडली करा लेने के लिए सुनीता मैम का बहुत धन्यवाद है। और अब हम वेरी गुड और अब हम लाइन वाइज थैंक्स बोलूंगी एंड स्पेशली द विराट एंड द राज who took lots of pain. प्रिया मैम ने बोला now the winter session is going on, हो रहा है where the discussion is going in the parliament, जिसमें दो मुद्दे बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिनके फैक्ट्स के बारे में आए दिन चर्चे हो रहे हैं, ठीक है, बोथ द कांग्रेस एंड बीजेपी। तो यू मस्ट वॉच द टेलीविजन। इससे क्या होता है कि यू इम्बाइब मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, while watching television। जब अभी हो रहा है फिर आपका एक हो रहा है अमेंडमेंट्स प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट नेसेसरी और नॉट। तो आप इन चीजों को अच्छे से लिख भी सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड थर्ड कि वन नेशन एंड द वन इलेक्शन, ठीक है। तो ये 3 जो टॉपिक्स है इस पर डिस्कशन हो रहा है और आपको ये न्यूज़पेपर में और
through the media, whether the electronic media or print media, इससे आपको information लेना चाहिए और देखना चाहिए. Thanks you all, the participants of class 9. Thank you so much for keeping silence in this auditorium. Thank you so much. तो एक बार अपने लिए जोर से ताली बजा लें. बहुत धन्यवाद.